Hello student, this is KD here. In this video, I am going to explain you today about the second part of the activity. Okay? In our first activity, I have already given you question answers 1 to 10. This is our second activity video. In this activity video, I will be giving you the next of the question answers of part 2. So in my activity video part 1, I have already given you question answers 1 to 10 to write down, and from question number 11 to 21 I will be giving in this activity video. So keep on watching my video from beginning till end, and happy digital learning. So pay attention. Let's go first of all to question number 11 and 12 first. So question number 11, why did the children enjoy playing? Question number 11, why did the children enjoy playing? बच्चे जो है खेलना पसंद क्यों करते थे जाइन के बागीचे में? Why did the children enjoy playing? Now the answer is, it was a large lovely garden with soft green grass and beautiful flowers like stars here and there. Peach trees broke out into delicate blossoms in spring. Birds sat and sang on the tree branches. So the children enjoyed playing in the garden. Whose garden? Giant's garden. तो बच्चे क्यों पसंद करते थे जायंट के गार्डन में खेलना? क्योंकि जायंट का गार्डन बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर था, विभिन्न प्रकार के फूल पौधे थे वहां, और चेरी और पीच, वहां पीच के पेड़ थे, पीच फल के पर, जो बहुत सुंदर खुशबू देते थे और फल भी देते थे स्प्रिंग सीजन में, वसंत ऋतु में। पक्षियां सुंदर गीत गाया करती थी उस पेड़ों की शाखाओं में बैठकर, और ये पूरा दृश्य नजारा बहुत सुंदर हुआ करता था, इसलिए बच्चे जायंट के गार्डन में खेलना पसंद करते थे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न 11 आप भली भांति समझ गए होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन 12। प्रश्न 12 में जाते हैं। क्वेश्चन 12, what did the north wind look like and what did he do? प्रश्न 12, नॉर्थ विंड देखने में कैसा था, किस प्रकार का था, और वो क्या करता था? आंसर इज, द नॉर्थ विंड appeared as if it has wrapped itself in furs. It rode all day and blew down the chimney pots. नॉर्थ विंड को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे लगता था उसने अपने आप को लपेट लिया हो सफेद रंग के फर्स में, यानी कि वो जो झंकार होते हैं, जो एक गद्देदार मुलायम परत होता है, उस पे ऐसा लगता था नॉर्थ विंड ने अपने आप को लपेट लिया है बर्फ के एक गद्देदार मुलायम परत से, और वो दिन भर
यहां से वहां आवाज चिल्लाता हुआ पूरे बागीचे में घूमता रहता था। और चिमनी पौध जो हुआ करते थे, जो चिमनियां हुआ करती थी उस जायंट के बगीचे के महल के ऊपर, उसको वो तोड़ता फोड़ता रहता था। So this I have explained question number 11 and 12. I hope you are writing it down in the copy. मैंने प्रश्न 11 और 12 बोल दिया। आशा है आप लिख रहे होंगे कॉपी में। अगर आप लिख चुके हो कॉपी में तो मैं आगे बढ़ूं। If you have completed written down in your copy, then I should move ahead. Let's move to the next question, question 30. Question 30. Question 13 is प्रश्न 13. Question 13. What was the first sign of spring? बसंत ऋतु के आगमन का पहला निशानी क्या था? Who were the 4 visitors that finally left the giant's garden? वो 4 विजिटर्स कौन थे? वो 4 मेहमान कौन थे जो स्प्रिंग बसंत ऋतु के आते ही जायंट का बागीचा को छोड़कर भाग गए, चले गए? Now let's see the answers. The melodious music by the little linnet outside the giant's window was the first sign of spring. Snow, frost, hail, and north winds were the 4 visitors who left the garden after the arrival of the spring. तो लिनेट एक बहुत सुंदर गाने वाली पक्षी है। जब लिनेट पक्षी आकर जायंट के खिड़की पे एक सुंदर गीत गा रही थी और जायंट सुनकर उस गीत को मदहोश हो चुका था, यही पहली निशानी थी कि जायंट के बागीचे पर बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। स्नो यानी बर्फ, फ्रॉस्ट, हेल एंड नॉर्थ विंड्स, ये 4 लोग थे जिन्होंने जायंट के बागीचे को छोड़ दिया स्प्रिंग के आते ही, वसंत ऋतु के आते ही स्नो, फ्रॉस्ट, हेल और नॉर्थ विंड्स ने जायंट का बागीचा छोड़कर चले गए। I hope you have noted down question number 12 and 13. You have noted down question number 13. आशा है क्वेश्चन नंबर 13 भी आप उतार चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। Let's move ahead. Now I am moving to question number 14. Question 14. Question 14 देखते हैं आप। Let's see question number 14. So the question 14 is here. Question 14. Read the lines and answer the questions. तो प्रश्न 14 में कविता के दिए हुए पंक्ति दी गई हैं इस पीले हाईलाइट के अंदर। इस पीले हाईलाइट के अंदर जो पंक्तियां दी गई है वो कविता की है। इसी कविता की पंक्तियों के आधार पर ये प्रश्न उत्तर हम करेंगे इन क्वेश्चन नंबर 14। In the question number 14, a line from the poem is given, which is highlighted with yellow. On the basis of this, the question number 14's question answer is given, which is called refer to context. Okay. So let's see the referring lines. संबोधित पंक्ति देखते हैं।
I believe the spring has come at last, said the giant. Giant ने कहा कि मुझे विश्वास है अब वसंत ऋतु आ चुकी है. तो this was the reference line. Now let's see the question answer. अब प्रश्न उत्तर देखते हैं. Question 14, question A. Question 14, प्रश्न 14, प्रश्न A. How did he know that the spring had come? जाइन को कैसे पता चला कि वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है? Answer: when the giant heard the linnet singing outside his window, he believed that spring had come. उत्तर: जब जायंट ने लिनेट को गाते हुए सुना अपने खिड़की के बाहर, तब उसे विश्वास हो गया कि स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है. Now question 14, question B. What did the giant see? प्रश्न 14, प्रश्न B. जायंट ने अपने बागीचे में क्या देखा? Answer: the giant saw that through the little hole in the wall the children had crept in. The trees were glad to have children back. Birds were flying about, twittering with delight, and flowers looked up through the green grass. उत्तर: जायंट ने देखा कि उसने जो अपने बागीचे के चारों तरफ दीवार बनाया था, उस दीवार के एक कोने में एक छेद है. उसी छेद से, उसी छेद से कुछ बच्चे अंदर आ चुके हैं उसके बागीचे में, और उनके अंदर आते ही वसंत ऋतु भी अंदर उसके बागान में आ चुके हैं. उसके बागीचे में पेड़ें फूलों से लद चुकी हैं. चिल्ड्रन, बच्चे पेड़ों पे लदे हुए हैं. पेड़ बहुत खुश है कि बच्चे आ गए हैं. बागीचे बहुत खुश हैं. पक्षियां गीत गुनगुना रही हैं, वो उड़ रही हैं खुशी से, और फूल खिल उठे हैं खुशी से, और घास भी बहुत मग्न है. बच्चों को देखकर सभी खुश हैं. यही चीज जायंट ने अपने बागीचे में देखा बच्चों के आने के बाद. ना क्वेश्चन 14, क्वेश्चन सी. प्रश्न 14, प्रश्न सी. हाउ डिड ही सेलिब्रेट द कमिंग ऑफ स्प्रिंग? किस तरह जायंट ने देखा कि किस तरह जायंट ने स्प्रिंग यानी कि वसंत के आगमन का खुशी मनाया? आंसर: he put up the little boy on top of the tree and then knocked down the wall of his garden. जायंट ने छोटे से बच्चा था जो पेड़ पर नहीं चल पा रहा था, एक पेड़ पर, उसने उस छोटे से बच्चे को पेड़ पर चढ़ा दिया, और फिर एक कुदाल लेकर उसने सारे बागीचे के चारों ओर जो दीवार उसने खड़ा किया था ताकि बच्चे ना आ सके, उस सारे दीवारों को तोड़ डाला. I hope you have written down question number 14. आशा है आप प्रश्न 14 कॉपी में लिख चुके होंगे. अब आगे बढ़ते हैं. Let's move up to the next question. Question 15. अब हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 पर. Now we are going to discuss about question number 15, 16 and 17. So question 15,
You keep on writing your copy. आप लोग कॉपी में लिखते रहें. Now here the listening. Question number 15. Why did the giant is called selfish? प्रश्न 15. जायंट को सेल्फिश क्यों कहा गया? Answer. The giant had a large, lovely garden, but he did not allow the children to play in it. He built a high wall all around it and wanted to enjoy his garden all alone. That is why he is called a selfish giant. जायंट को सेल्फिश इसलिए कहा गया क्योंकि उसने अपने चारों बागीचे के चारों ओर दीवार उठा दिया था कि बच्चे उसके बागीचे पर आ ना सके. वे चाहता था कि उसका बागीचा उसका रहे, उसके बागीचे पे कोई ना आए और वो इस पूरे बागीचे में खुद रहे और किसी के साथ साझा ना करे. इसी कारण जायंट को सेल्फिश कहा गया है. Now question 16. प्रश्न 16. How do we know that the trees were happy to have spring back? कैसे पता चलता है कि पेड़ पौधे बहुत खुश थे बसंत ऋतु के आगमन पर? बसंत के आने पर पेड़ पौधे बहुत खुश थे, कैसे पता चलता है? The answer is the trees covered themselves with the blossom and waved their arms gently above the children's head. This shows that they were glad to have spring back. पेड़ों ने अपनी टहनियों को नीचे कर दी थी ताकि बच्चे उस पर चढ़ पाए. जो फूल पौधे थे वो खिल उठे थे पेड़ों पर. इससे ये पता चलता है कि स्प्रिंग के आने पर यानी वसंत ऋतु के आने पर पेड़ पौधे बहुत खुश थे. Now let's come to question number 17. प्रश्न 17. Why was it still winter in one corner of the garden? गार्डन के एक कोने पर, बागीचे के कोने पर अब तक अभी भी विंटर यानी कि शीतकाल क्यों था? Answer. There was still winter in one of the farthest corners of the garden. A little boy was wandering all around a tree to reach up to its branches. Even the tree bent its branches as low as it could, but the boy was too tiny. As the tree could not get the gentle touch of the child, so it was covered with snow and frost. Thus it was winter there. एक छोटा सा बच्चा, बागीचे के एक कोने में एक छोटा सा बच्चा था जो पेड़ पर चढ़ना चाह रहा था पर वो नहीं चढ़ पा रहा था. पेड़ भी चाह रहे थे, वो झुक रहा था पेड़ और ताकि वो बच्चा चढ़ पाए. बच्चा को छूना चाहता था पेड़ भी, पर बच्चा इतना छोटा था कि वो चाह कर भी पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था. इसी कारणवश वो पेड़ और वो स्थान बहुत दुखी थे. इसी कारण वहां तक अब तक शीत था, स्नो थे, फ्रॉस्ट थे और वसंत का आगमन वहां नहीं हुआ था. I hope all of you have written question number 15, 16, 17. आशा है आप सभी ने 15, 16, 17 अपने कॉपी में उतार लिया होगा. Now moving ahead, अब आगे चलते हैं. Now come to question 18. प्रश्न 18. Do you think the giant's garden was the most beautiful garden? Give reason. क्या आपको लगता है कि जायंट का बागीचा सच में बहुत खूबसूरत था? इसका कारण बताएं. Answer. There were fruit-bearing trees, beautiful flowers, land covered with lush green grass, and chirping birds all around. But the children's presence made it the most beautiful garden anyone could have ever seen. जायंट का बागीचा सच में बहुत खूबसूरत था, बहुत बड़ा था. चारों तरफ फूल थे, पेड़ पौधे थे, चेरी और पीच के ट्री भी थे, वहां पेड़ भी थे, फूल थे,
हरे घास उगे हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, पर सबसे सुंदर फूल इस बागीचे के थे, जो इस बागीचे की शोभा बढ़ा रहे थे, वो थे बच्चे। बच्चे के होने के कारण जायंट का बागीचा बहुत सुंदर दिख रहा था। आई होप यू हैव रिटन डाउन क्वेश्चन 18। आई एम मूविंग अहेड। आशा है आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 भी उतार लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19, प्रश्न 19, एक्सप्लेन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जायंट एंड द लिटिल बॉय। उस छोटे से बालक और जायंट का पहला मुलाकात के बारे में चर्चा कीजिए। आंसर, उत्तर, in the farthest corner of the garden was standing a little boy who could not reach up to the branches of the tree, so he was crying bitterly. The giant's heart melted, and he lifted the boy and put him on the branches of the trees. The boy felt quite happy, and he kissed the giant. This gesture touched the giant's heart. आंसर, उत्तर, बागीचे के कोने में एक छोटा बच्चा जो पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था, वो बहुत जोर से रो रहा था। उसे रोता देख जायंट का हृदय पचीस गया, माया आ गया उसे उस बच्चे पर, और उसका दिल मोम की तरफ पिघलने लगा जायंट का, और उसने छोटे से बच्चे को उठाकर अपने हाथों से पेड़ के ऊपर बैठा दिया। वो बालक बहुत खुश हुआ और खुश होकर उसने उसे एक किस कर दिया जायंट के गालों पर। इसी कारण जायंट को बहुत अच्छा लगा और उसका दिल और पचीस गया और खुश हो गया, मुलायम हो गया। So I hope you have understood question number 19 and you have copied it down. शायद question number 19 भी आप उतार चुके होंगे। Now I'm moving ahead. Now I'm moving to question 20. Now I am at question 20. Explain the second meeting of the giant and the little boy. उस छोटे से बालक और जायंट का दूसरा मुलाकात बताइए। In answer, in the farthest corner of the garden, the giant saw the little boy standing underneath the tree, whose branches were all golden and silver fruit hung down from them. He ran to meet him, but on seeing some injury marks on little boy's hands, he became restless. The little boy assured him that these are the marks of love, so that the giant could be pacified. एक कोने में, बागीचे के कोने में अचानक एक दिन जायंट ने देखा कि छोटे से एक पेड़ के नीचे वही छोटा सा बालक जिसे वो खोज रहा था, वो आ चुका है, और पूरे पेड़ में फल ऐसे लदे हुए थे, ऐसा लगता था सोना और चांदी लदे हुए हैं उस पेड़ पर, वो चमक रहे थे, एक चमक थी उस कोने पे। तो जायंट दौड़ कर गया उस बच्चे के पास खुशी से, पर उसके हाथों में कील के जख्म के घाव के कुछ निशान थे उसके हाथों में और पैरों पे। ये देखकर जायंट गुस्सा हो गया और उसने कहा बच्चे से कि बताओ तुम्हें ये जख्म किसने दिया, मैं उसे मार डालूंगा। बच्चे ने जवाब दिया, ये जख्म, ये घाव प्रेम के हैं, इसलिए तुम शांति हो जाओ। नाउ आई होप यू हैव कॉपीड डाउन क्वेश्चन 20। आशा है आपने क्वेश्चन नंबर 20 उतार लिया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 21। अब मैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पे जाता हूं, क्वेश्चन 21। So this is question number 21. This is question number 21. And this is the last question of this video. इस एक्टिविटी वीडियो 2 का ये आखिरी प्रश्न है, तो ध्यान से देखें। This is the last question of this video. Question number 21. How did the nature of the selfish giant change in the course of the story? इस कहानी के अंत तक सेल्फिश जायंट में क्या परिवर्तन आया? इस कहानी में
सेल्फिश जायंट के अंदर क्या परिवर्तन आया और वो किस प्रकार बदल गया? आंसर: Initially, the giant didn't like the children to play in his dazzling garden. He chased them away and built a huge wall. Winter dominated it as the spring didn't enter, for there were no children and no birds. One day, when the children crept inside it through the hole made in the wall, the birds and blossom came along with them. The giant now realized his mistake and was not wicked any longer. He spent time playing with the children. When he got old and feeble, he sat in his armchair watching them play and admired his garden. जायंट पहले बहुत सख्त था। वो नहीं चाहता था कि बच्चे उसके बागीचे पर खेलें। वो उन लोगों को भगा दिया करता था और उसने दीवार खड़ी कर दी थी अपने बागीचे के आजू बाजू। पर जब विंटर यानी शीतकाल, हेल, फ्रॉस्ट, ये सब उसके गार्डन पर बहुत दिन तक, बागीचे पर बहुत दिन तक रहने लगे। आज जब वसंत ऋतु बहुत दिन तक उसके बागीचे पर नहीं आया और फिर अचानक उसने एक दिन देखा कि वसंत ऋतु उसके बागीचे पर आ चुकी है क्योंकि बच्चे आ चुके थे, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गए कि जब तक बच्चे इस बागीचे में रहेंगे तब तक मौसम भी खुश रहेंगे और वसंत ऋतु आएगा। इसलिए उसने बच्चों को डराना छोड़ दिया। उसने अपना बागीचा बच्चों के साथ भी साझा किया और उसने अपने बागीचे के चारों ओर जो दीवार बनाया था उसने तोड़ डाला और बच्चों के साथ वो भी खेलने लगा उसी बागीचे में। और जब वो बूढ़ा हो गया तो अपने आम चेयर पर बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखने लगा। इस प्रकार सेल्फिश जायंट एक सख्त जायंट से मुलायम और प्रेम हृदय वाला जायंट बन गया। So, I hope you have understood the whole story of the selfie giant as well as the activity video part 1 and part 2. Both you have enjoyed and you have understood and you have copied down all the question answers, extra question answer which I have given you. आशा है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, आप समझे होंगे और इसके सभी प्रश्न उत्तरों को जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर मैंने दिया वो भी आपने अपने कॉपी में उतार लिया होगा। एक्टिविटी पार्ट 1 और एक्टिविटी वीडियो पार्ट 2 का सारा प्रश्न उत्तर आप लोगों ने उतार लिया होगा, आशा करता हूँ। सो नाउ आई एम एंडिंग माई वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड एंजॉयड द वीडियो। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय। सी यू अगेन।